This conference will now be recorded. So we are creating the geometry form of the overhead tank, rectangular overhead tank. In the geometry, go to the structure wizard, frame model, and reframe. So length is 10 divided by the two portion 5 and width is also 10 divided by the two portion. 3 stories building, so 9 plus tank height 4, so 13 divided by 4 portion, the two portion 5 length, and here is also 5. So here you have to change 3 3 3 and tank is 4. Put it in the height section. Height is 13 meter, and we are going to divide in 4 sections, so 3 3 3 9, and then tank height is a 4 meter long. Do it. Then apply and merge it in a stat pro section. Whatever the 00 form, click OK. Look, this is our tank portion. View selected view only. Okay, so look there. There is a one column is there. So select this column and delete it. Don't need to select the tank upper tank portion and goes to the view section and then select the view object only and then delete. I am only showing this portion. You can easily see this portion, so I am using this view section, view selected object only. So goes to the upper section and select this portion and delete this portion. Why? Because there is no column section in the tank portion. Okay, done. Then what are we are going to do here? We are going to add the staircase portion. So how to add the staircase portion? If you do all this, so reply done, then we shall proceed. Otherwise, wherever you get stuck, tell me so I can explain. जहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलो, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. ये हो चुका है. कल जो करे थे आज फिर से करो. जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ये पोर्शन हो जाए तो बोलना मुझे.
whoever joined now, we are repeating this portion, the previous class portion again, and we will do the all analysis portion and see how to create the pressure, how to assign the pressure. Okay, then staircase portion. So what to do? Simply choose this side. If you build the staircase along this side, so choose this column and right click and insert node. In between the node or whatever section, from start to bottom, there is a start portion, there is a this is our ending portion. How can we tell? Because this is the green, this is the blue side. So whatever distance we can put here, from this distance you can create the node. If you create multiple nodes, then you can put the n number equal distance. So divide, if you put the distance, then equal number distance will be created here. Or suppose I am creating the one midpoint, so there is an option add midpoint. So click there in between the midpoint 1.5. So distance is 1.5. Then okay, you have the node point. Then simply select this node from this node cursor and this node and this node. Why? Because we are creating the staircase and step the slab portion also. So what we are going to do here, we are going to copy and paste the same node in the Z direction. So press Ctrl C and Ctrl V. So there is a paste section. So in the Z directions, we are going to give the distance. So in these Z directions, I am putting first 1 meter, then okay. See these notes compared from the Z direction, and then also then again press Ctrl and V, फिर से दबा Ctrl and V. So फिर से वो क्या होगा, वो कॉपी मतलब कॉपी हो चुका है, पेस्ट होगा. कितना डायरेक्शन में पेस्ट करना है, 1 मीटर डिस्टेंस में तुम पेस्ट कर चुके हो. फिर से समझो कि फिर से 1 मीटर डिस्टेंस लेके देना है, तो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्टेंस 112, सो प्रेस 2 डायरेक्शंस देन ओके. सो देखो आ चुका है. अब कल हम लोग क्या किए थे, इसमें एक स्लैब ऐड किए थे, इसमें एक स्लैब ऐड किए थे, तो एक ही बारी में इसको दो, उसके बाद स्लैब ऐड कर. तो क्या करना है, जूम करके इस नोट को सिलेक्ट, मतलब इस सारा नोट को सिलेक्ट करो और इसको भी. अब इसको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस देना है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस देना. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. अब एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस देना है, तो कितना डिस्टेंस दोगे, वही 1 मीटर करके दे दो. अब देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है सब कुछ, तो एक ओके हो चुका है. हो जाए तो बोलना. फास्ट क्या, इसमें इस बीम को सिलेक्ट करके मिड पॉइंट में एक नोट क्रिएट किया गया है. उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद इस नोट को, मतलब इस नोट को, इस नोट को और इस नोट को कॉपी पेस्ट किया गया है. किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में. पहले 1 मीटर, दूसरे बार 2 मीटर डिस्टेंस के थ्रू. तो ये सारा कुछ क्रिएट हो चुका है एक साथ. फिर से क्या किया गया है, फिर से
नोट कर्सर के थ्रू इसको कॉपी किया गया है, मतलब इसको और इसको कॉपी किया गया है और एक साथ किया गया है इसको भी। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। कितना? 1। हो जाए तो बोलना। जो कर रहे हो नहीं हो रहा है, मुझे बोलो कहाँ पे नहीं हो रहा है, मैं बोल दूंगा। कैसे कर रहे हो, क्या मतलब बोलोगे तभी तो समझ पाओगे कि क्या कर रहे हो। हो रहा है कि नहीं बोलो, या फिर से दिखाओ इस पोर्शन को। समझो कि ये सारे नोट को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस साइड से उसको सिलेक्ट करूँगा। नोट कर सकते थे। मिड में था, इसको हम नोट कर सकते तो सिलेक्ट किए, इसको भी, इसको भी। कंट्रोल सी प्रेस करो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। या तुम राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी नोट, तो वही चीज होता है कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने से।
या तुम क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन रिपीट दे सकते हो उस नोट के लिए। किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, एक एक करके। उसके बाद क्या करना है, लिंक अप कर देना, तो लिंक अप हो जाएगा उसके साथ। उसके बाद बीम कर्सर के थ्रू इसको और इसको फिर से ट्रांजिशन रिपीट दे सकता हूँ मैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स में है। एक ही स्टेप, कितना, 1 मीटर। ओके, आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या गलत हो रहा है, इसमें इस जगह पे बीम है और मतलब इस जगह पे बीम है, इसमें बीम नहीं है। उसमें सिर्फ प्लेट का सेक्शन और थिकनेस का सेक्शन बैठ रहा है उसमें। तो ऐसे करने से गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसमें भी बीम नहीं है, ठीक है। ये जो नीचे में जा रहा है इसमें भी बीम का स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग उसको कॉपी पेस्ट किए थे नोट कर सके तू। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। किस जगह पे, इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में 1 मीटर एक बार, और दूसरे बार जेड डायरेक्शन में 2 मीटर। ओके, ये हो गया। तो इसको ऐड कर दो। तुम ट्रांजेक्शन रिपीट से कर सकते हो, लिंकअप नहीं करना तो भी चलेगा। हो गया है। अब क्या करना है, फिर से नोट कर सके थ्रू, तो 3, 1, 2, 3, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर दे रहा हूँ। ओके, आ चुका है। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में उसके लिए ये जो सेक्शन है एड 4 नोट से ऐड करो। हो चुका है। अब क्या करना है, इस साइड से ये 4 नोट लेके, इस साइड से 4 नोट लेके इस साइड। ये चीज हो जाए तो बोलना, ट्राई करो इसको।
हुआ है कि नहीं बोलो। पहले बोलो तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो बोलो हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो बोलो। देन इसको रिपीटेशन देना है ऊपर में, ट्रांजिशन रिपीट करके। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम लोग क्या करो, एक जन मुझे स्क्रीन को शेयर करो, मैं इसको स्क्रीन को शेयर करने का ऑप्शन दे दूंगा, तो तुम लोग करना, तो मैं देख पाऊंगा कि क्या कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोला था कि लैपटॉप में जो कर रहे हो वो लैपटॉप गो टू मीटिंग लैपटॉप से ओपन करो, तो मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे सकता हूँ, तो तुम जो करोगे, मतलब कर रहे हो, तो शेयर कर दूंगा, तो तुम जो कर रहे थे मैं देख पाऊंगा, यहाँ सभी लोग देख पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आ चुका है, आ जाओ इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, ऊपर तक हाइट देना है, तो हम लोग ऊपर से इसको क्या करेंगे, व्यू से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखो क्या चीज है इसमें, इसमें वी हैव द प्लेट्स एंड वी हैव द बीम स्ट्रक्चर। तो सो प्लेट्स एंड बीम्स के लिए क्या करना है, प्लेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद बीम्स को सिलेक्ट करके रिपीटेशन देना है, ट्रांजिशन रिपीट से डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में हाइट में जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में दे रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग इस कर्सर को भी यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्री से कर्सर, ज्योमेट्री कर्सर से क्या होता है, सब कुछ सिलेक्ट होता है, एक साथ सब कुछ सिलेक्ट होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक एक करके ही करो, तो समझ पाओ। तो प्लेट को रिपीटेशन देने के पहले क्या करना है, बीम को रिपीटेशन देना। तो इसमें सिलेक्ट करना, दो बीम यहाँ पर मौजूद है, दो बीम का सेक्शन, तो क्या करना है, ट्रांजिशन रिपीट में देना है। अब ट्रांजिशन रिपीट में कहाँ देना है, वाई डायरेक्शन में देना है, तो वाई डायरेक्शन में तो कितना कितना देना है, 3 स्टोरीज है, तो पूरा देना चाहते हो तो 3 सेक्शन लेना, और टैंक के बेस लेवल तक उसको स्टेयरकेस को हाइट देना चाहते हो तो 2 सेक्शन, और 3 मीटर लॉन्ग करके है, तो 3 मीटर। उसके बाद क्या करना है, लिंक अप नहीं करना है, ओके कर देना। तो घूम, जब आइसोमेट्रिक व्यू से देखोगे तो देखना यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आ चुका है। अब प्लेट को रिपीटेशन दोगे हो जाए, तो फिर से उस व्यू से plate cursor के through we have to choose the plate cursor and then select the plate section and then repeat। and कहाँ पे repeat section देना है, transition repeat में जाना है, y direction में वही दो वाला section, and you have to put the 3 meter and then what, then okay, then go to the isometric view and see this all get created, and you can see this portion, this view also, and you can zoom it, select the tab portion and get any direction of arrow, click there,
You can rotate and see. Do it. इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो चुपचाप क्लास करते चले जाओगे, ऐसा नहीं है। इंटरेक्ट करो, कहाँ पे क्या समझ नहीं पा रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है करने में, बोलो। नहीं बोलोगे तो समझ नहीं पाओगे। अब तुम नहीं कर रहे हो, चुपचाप क्लास देख रहे हो तो समझ नहीं पाओगे। मतलब जब तक पुट नहीं करोगे, करोगे नहीं, दिक्कत आएगा बाद में करने में। हिमालय बोलो, हुआ है कि नहीं बोलो। हिमालय, तनु जो कर रहे थे, अभिषेक, अक्षय, जो जो लोग मौजूद थे। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, लेग को ऐड करना है कहाँ पे, टैंक में। और उसके थ्रू क्या डिफाइन करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसमें डिफाइन करना है। अब उसके लिए क्रिएशन करना है, तो इसको खत्म करो पहले। हिमालय का हो गया है, और दूसरा कोई पहले बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। Why do you have faced the problem? If you interact with me, then it will be easy to understand where you get the problem. देखो, और किसी का दिक्कत नहीं आ रहा है तो इसमें सिर्फ स्टेयरकेस का क्रिएशन हुआ है। तो नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में क्या ऐड करेंगे, इसमें अब प्लेट का सेक्शन ऐड करें चढ़ी तरह। तो इसमें ऐड करने के लिए ऊपर का सेक्शन सिलेक्टेड रहना चाहिए। समझो कि इसमें काम नहीं कर रहे, ऊपर का सेक्शन में काम कर रहे। समझो कि इसमें देना है प्लेट का सेक्शन। तो यहाँ पर फोर नोडेड प्लेट है यहाँ पर। सो यू हैव सिलेक्ट दिस एंड ऐड। सो सपोज इसमें ऐड करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसी का सेक्शन में काम करूंगा। तो मैं इसी को ही रखूंगा, बाद बाकी को इसमें से हटा दूंगा। तो कैसे हटाऊंगा, व्यू से। सिर्फ इसमें काम करना है तो कट सेक्शन का यूज करूंगा, कल जो दिख रहे थे कट सेक्शन। और तुम सिलेक्ट विद व्यू का सेक्शन भी यूज कर सकते हो। तो समझो कि कट सेक्शन का यूज कर रहे, तो we have to select the select with view section, and with this view we have to cut. So okay, and if you get selected in the plate section, you doesn't cut it. Why? Because there is no plate here. So you have to select the beam section. Always select the beam section, then goes to the cut section. View, select to view and window, and okay, and cut it. So go to the isometric view, you have this section. Okay, so suppose I am assigning their plate section. So वहां पर डिस्कस हुआ था कल, जो हम लोग लोकल एक्सिस से डिफाइन करने का कोशिश कर रहे थे। प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर रहेगा टैंक के अंदर, समझो कि यहाँ पर वाटर है, तो प्रेशर जब पड़ेगा इस प्लेट के अंदर इस तरफ पड़ेगा, उस प्लेट के अंदर उस तरफ पड़ेगा उस साइड में, और इस प्लेट के अंदर इस मतलब प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स में पड़ रहा है। मतलब ग्लोबल से लोगे तो। और लोकल से डिफाइन करना चाहते हो तो लोकल की तरह, मतलब क्रिएशन जो जैसे करके कर रहे हो वैसे ही तुम्हारा लोकल एक्सिस क्रिएटेड होगा। तो
जैसे कि समझो कि मैं ऐसे करके इसमें प्लेट ऐड कर रहा हूँ इस साइड में, तो वहाँ पर बीम ऐड हुआ है, देखो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें प्लेट को जनरेट करना है यहाँ से। तो ये प्लेट जब जनरेट होता है, इसका जब लोकल एक्सिस फाइंड आउट करोगे तो शिफ्ट टी दबाना, तो लोकल एक्सिस देखना कि इस तरफ है, लोकल जेड एक्सिस इस तरफ है। तो लोकल से देना चाहते हो तो प्रेशर तो जेड की तरफ देना पड़ेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे घुमाओगे, इसमें ग्लोबल एक्सिस से डिफाइन करोगे, तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस से। तो प्रेशर जब डिफाइन होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कल डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम लोकल एक्सिस को भी डिफाइन कर सकते हो, ग्लोबल एक्सिस को भी डिफाइन कर सकते हो, देखेंगे ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस वहां पर जब डिफाइन करके। तो ग्लोबल एक्सिस जब होगा तो प्रेशर जो कैलकुलेट, मतलब प्रेशर जब जैसे जितना प्रेशर होगा उसमें तो डिफाइन होगा, तो एक्स एक्सिस में दोगे तो उसमें माइनस माइनस देना पड़ेगा, ग्लोबल एक्स एक्सिस से दोगे तो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, मतलब ग्लोबल से दोगे तो एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, तो माइनस से डिफाइन करना पड़ेगा। पर जो लोकल एक्सिस है, जो यहाँ पर दिख रहा है लोकल, प्लेट का जो क्रिएशन हुआ है, किस तरफ प्लेट का क्रिएशन हुआ है, वो एक्स वाई लेते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन लेते हैं जो क्रिएशन होता है, जैसे करके क्रिएशन करोगे। अब लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस इस तरफ से क्रिएशन की है तो एक्स डायरेक्शन सबसे में इस तरफ आए। तो हम लोग डिफाइन किए थे कि लोकल एक्सिस किसको बोलते हैं, लोकल एक्सिस बोलते हैं जैसे कि जैसे क्रिएट करोगे। समझो कि इसमें बीम है, अब इसमें बीम बीम के लिए, इस बीम के लिए इसमें बीम है, तो बीम के लिए एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस कहाँ पे मिलेगा, उसके हिसाब से तुम्हें वहां पर डिफाइन करना होगा लोकल एक्सिस जब यूज करोगे उस प्रेशर के लिए, तो वो लोकल एक्सिस की तरफ डिफाइन होगा। अब लोकल एक्सिस ग्लोबल एक्सिस एक नहीं है, ग्लोबल एक्सिस इसको बोलते हैं, लोकल एक्सिस क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पर प्लेट क्रिएट करूंगा, तो समझो कि 4 नोट प्लेट ऊपर से क्रिएट कर रहा, ठीक है। अब देखो जेड का डायरेक्शन घूम चुका है, क्यू जेड का डायरेक्शन घूम चुका है क्योंकि इस तरफ से क्रिएशन हुआ है, तो एक्स एक्सिस इस तरफ आया है और जेड का डायरेक्शन उस तरफ चला गया। अब देखो ये ऊपर नीचे से ऊपर में क्रिएट हुआ है तो वाई ऊपर में गया है, वहां से ऊपर ऊपर से नीचे में क्रिएट हुआ है तो वाई नीचे में गया है, और जेड क्या हुआ है, जेड घूम चुका है। अब इसी में ही सिलेक्ट करके पूरा साइड को सिलेक्ट करके जब तुम लोकल जेड में दोगे वैल्यू, तो जेड इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो देखना जो वैल्यू से मतलब प्लस वैल्यू ले रहे हो तो प्लस वैल्यू से दोगे तो ए ए सेक्शन का प्रेशर इस तरफ से पड़ेगा और ए सेक्शन का प्रेशर बाहर से अंदर तक पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो तुम ग्लोबल एक्स से भी कर सकते हो, ग्लोबल एक्स फिक्स्ड है इसमें, इस तरफ में देना चाहते हो तो उसमें तुम माइनस डाल के भी दे सकते हो, पर लोकल एक्सिस से लोगे तो उसके ओरिएंटेशन में देखना पड़ेगा। अब ओरिएंटेशन कैसे होता है, ओरिएंटेशन तुम जैसे क्रिएशन कर रहे हो, इसीलिए हम लोग क्या बोले थे, जैसे फर्स्ट को क्रिएशन किए हो सेकंड को ही ऐसे करके क्रिएशन करते जाओ, तो जब प्रेशर डिफाइन होगा तब गलत नहीं होगा कुछ, जैसे करके उस डायरेक्शन में एक्सिस को क्रिएशन कर रहे हो वैसे ही करते जाओ नीचे से ऊपर एक साइड से। तो जेड यहाँ पर पड़ चुका है। अब तुम लोकल से डिफाइन करोगे कि ग्लोबल से डिफाइन करोगे, वो डिफाइन डिफरेंट यूजर के ऊपर डिफाइन करते हैं, पर दो से ही कर सकते हो। पर लोकल से डिफाइन करोगे तो एक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेट ऐड होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट को चूज करके उसमें असाइन करोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे नीचे से ऊपर क्रिएशन हो रहा है वैसे ही करते जाओ, तो डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा जेड एक्सिस का।
ऊपर और नीचे का बाकी है, तो ऊपर में भी ऐड करो। शिफ्ट प्लस टी दबाना, इसका ओरिएंटेशन आ जाएगा। शिफ्ट प्लस टी का मतलब क्या है, टी उसका शॉर्टकट की है, इसमें आता है ये जो तुम्हारा लेवल एंड सिंबल्स है, प्लेट ओरिएंटेशन दिखा रहा है लोकल एक्सिस का, उसका लोकल एक्सिस का प्लेट ओरिएंटेशन टी है, तो शिफ्ट टी है। बीम ओरिएंटेशन देखना चाहते हो तो बीम का जो एक्स एक्सिस लोकल एक्सिस है उसको देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट प्लस ओ दबाना है, बस आ जाएगा। अब नीचे के देना है, ठीक है। अब समझो कि सिर्फ नीचे का पोर्शन देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से उसको आइसोमेट्रिक में है इसमें आके इसमें से देखूंगा तो कट सेक्शन कर सकता हूँ, इससे बीम कर सके तो वो सेक्शन रहेगा सिर्फ। अब क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसमें फोर नेट एट with the help of the at four node plates। होल स्ट्रक्चर यहाँ से आता है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, ठीक है। शिफ्ट प्लस टी दबा लो, चला जाएगा सब, बंद हो चुका है, इसमें से देख लेना। सेक्शन ऐड हुआ है सब, जियोमेट्रिकल सेक्शन। अब क्या करना है, बीम का लिए प्रॉपर्टीज ऐड करना है, प्लेट के लिए प्रॉपर्टीज ऐड करना है। प्लेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, थिकनेस, वहां पर जो थिकनेस स्लग का लिए दिया जा रहा है। ये वाला सेक्शन क्रिएशन हुआ है कि नहीं बोलो, प्लेट का सेक्शन ऊपर में। अब वहां पर मतलब समझो कि तुम ऐसे करके क्रिएशन में, प्लेट का क्रिएशन में दिक्कत आ रहा है, मतलब जेड घूम जा रहा है, ठीक है। जब जेड घूम जाएगा परेशानी का मतलब सोचने का नहीं है, ग्लोबल एक्सिस को यूज कर देना। प्रेशर में, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में ग्लोबल एक्सिस को यूज कर देना, क्योंकि ग्लोबल एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है। प्रेशर इस तरफ देना है, इस साइड से तुम माइनस करके दे देंगे, हो जाएगा। पर लोकल एक्सिस से यूज करोगे तो उसमें लोकल एक्सिस का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। हो चुका है जियोमेट्री फॉर्म करना। अब जियोमेट्री फॉर्म करना हो चुका है तो क्या करना है, वही चीज करना है, जीराल में जाना है, जो इतना दिन से कर के आ रहे थे हम लोग। डिफाइन करना है, किसका सेक्शन डिफाइन करना है, रेक्टेंगल का सेक्शन डिफाइन करना है। 4x3 ले रहे थे कल, वही लो, ऐड करो। 3x3 बीम के लिए ऐड करो, वो कॉलम के लिए, बीम के लिए डिफाइन कर लो, इसमें सिलेक्ट करके assign to selected beam assign, yes। ये इतना बार किया जा चुका है कि अब देखो दिक्कत नहीं आएगा। बीम्स पैरेलल टू एक्स, जेड, assign। अब क्या है, थिकनेस सेट करना है, बीम के स्ट्रक्चर के लिए पुट कर चुका हूं, ठीक है।
और कॉलम के स्ट्रक्चर के लिए पुट कर चुका हूँ वहां पर, हो चुका है। अब उसमें क्या करना है, उसमें अब थिकनेस सेट करना है, किसके लिए, प्लेट के लिए। तो 0.2 से ले उसमें सारा सेक्शन कंक्रीट का ऐड। अब इसको असाइन करने के लिए क्या करना है, प्लेट कर्सर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद होल स्ट्रक्चर में सिलेक्ट करो, तो प्लेट जहां जहां प्लेट है उसके लिए प्लेट, we got selected all the plate, so assign to selected plate, assign, then assign it and assign. So whatever the thickness we have here, we get assigned this thickness portion in the plate section. इसको हो जाए तो बोलना। देख लो प्रॉपर्टीज, देख लो। एक कॉलम के लिए, ये सब बीम के लिए, थिकनेस के लिए, थिकनेस 0.2 से दिया गया। ठीक है, दूसरे को करने को टाइम दो, 2 मिनट, जो कोई कर रहा है। आप देखो कल जो किए थे कल, और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज हुआ था, मतलब इस साइड में एक पोर्शन रखे थे, मतलब इस साइड में जाने के लिए आने के लिए इसमें एक बैल्कनी टाइप चीज था। सो उसमें हम लोग यहाँ पर क्रिएशन करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। समझो क्या करना है, इतना कुछ आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस साइड में जाने के बाद काट सेक्शन का यूज करके उस सेक्शन को सिर्फ रख देता हूँ, इस सेक्शन को। ठीक है, घूम जाओ, यहाँ पर आ चुका है। तो जियोमेट्री में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पोर्शन को ऐड करना है। तो पोर्शन को ऐड करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जो यहाँ पर छोट मतलब क्रिएशन नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है प्लेट का सेक्शन। सो क्या कैसे ऐड करेंगे, तो वहां पर क्या रहना चाहिए, वहां पर नोडल पॉइंट्स रहना चाहिए। सो कॉपी पेस्ट करो, किस डायरेक्शन में पेस्ट करना है, जेड एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स का इस डायरेक्शन में आओगे तो -1, मतलब समझे कि 1 मीटर करके है। सो -1 करके ओके करो, आ जाएगा। अब इसको और इसको लेके कॉपी पेस्ट उधर, Ctrl+C Ctrl+V। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस, जेड का किस डायरेक्शन में, उस तरफ जा रहा है, इस तरफ नहीं, उस तरफ जा रहा है माइनस, सो -1। ओके, उस तरफ पेट हो चुका है। अब इसको और इसको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x, इस डायरेक्शन में x, सो माइनस देने का कोई मतलब नहीं है, 1। ओके, आ चुका है। अब इधर भी देना है, तो समझो कि इसको कॉपी करते हैं। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, कितना दूर, समझो कि इस डायरेक्शन, ये जो पोर्शन है इतना ही आएगा, तो 2 है उधर, 1 1 करके 2। ओके, आप ऐड करते जाओ। अब देखो प्लेट का सेक्शन ऐड की हो, थिकनेस हुआ पर नहीं बैठा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट करके ऐड करना होगा।
तो कहाँ पे है? जनरल में है, प्रॉपर्टीज, इसके लिए असाइन करना है। कहाँ पे असाइन करना है? प्लेट कर सकते तो सिलेक्ट करो इस प्लेट को कंट्रोल दबा के, इस प्लेट, इस प्लेट, इस प्लेट, इस प्लेट, असाइन। सारा कुछ असाइन हो चुका है। डिस्प्ले टू होल स्ट्रक्चर, रेंडरिंग व्यू, इस वाला पोर्शन को क्रिएट करो। रेंडरिंग करके देख लेना क्रिएशन हुआ है कि नहीं। देखो बोलो।
अब कल जो किया गया था कि प्लेट के लिए हर एक सेक्शन में एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए वो जो मेशिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करेंगे। तो पहले क्या करो, जहाँ पे काम करना है उसको सिलेक्ट करो। मतलब समझो कि ये साइड वाला प्लेट को काम करना है, तो प्लेट कर्सर के थ्रू सिर्फ साइड वाला प्लेट को ही सिलेक्ट करो इसमें। तो देखो सारा साइड वाला प्लेट ही सिलेक्टेड होगा। किस लिए करते हैं ये सब, पहले सिलेक्ट करो बोल दो। कैसे सिलेक्ट करना है, व्यू से सिलेक्ट करना है। कोई भी साइड का व्यू लो और ऊपर से नीचे तक मत करो, सिर्फ बिटवीन प्लेट क्लस्टर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द प्लेट कर्सर बिटवीन में सिलेक्ट करो। बिटवीन, तो इस साइड का प्लेट इस साइड का प्लेट सिलेक्ट होगा, और ऐसे करके पूरा कर दो तो इस साइड में पैरेलल जो प्लेट है वो भी सिलेक्टेड हो जाएगा। तो देखो चारों तरफ का प्लेट ही सिलेक्ट हुआ है, ना कि नीचे का और ऊपर का। नीचे का अलग करके करेंगे, और ऊपर में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में वाटर प्रेशर नहीं है। प्रॉपर तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या करना है, जियोमेट्री में जाना है, जेनरेट प्लेट मेश जो है ओके करते जाओ, और इसको पॉलीगोनल मेशिंग में क्रिएट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल मेशिंग में क्रिएट करेंगे। साइड को प्लेट को सिलेक्ट करके कहाँ पे जाना है, जियोमेट्री में जाना है, और यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर जेनरेट प्लेट मेश का ऑप्शन मिलेगा। उसमें जो आएगा ओके करके क्वाड्रिलेटरल मेशिंग करके छोड़ दो, वो आ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन से डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे के लिए करना पड़ेगा, नीचे का अंदर का प्लेट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको घुमा के सिर्फ इसमें ही काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कट सेक्शन का यूज करूँगा। कर सकते तो इसको समझो कि ऊपर का भी प्लेट का पोर्शन आ चुका है, फिर से कट करो। आप फिर से कट करो तो ऊपर का सेक्शन चला जाएगा, सिर्फ यही रहेगा। ऐसे में आ गया। क्या करूँगा, प्लेट कर्सर को सिलेक्ट करूँगा, इसको पकड़ूंगा, अब जेनरेट स्ट्रक्चर। असाइन करो इसको।
हुआ है कि नहीं बोलना। तो हिमालय सपोर्ट ऐड करो नीचे में। और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है बोलो, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। कार्ड सेक्शन का यूज करो तो अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओगे। जहाँ पे जिसको जिसको देना है कार्ड सेक्शन का यूज करके कर सकते हो। ऊपर का प्लेट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का प्लेट में एनालिसिस नहीं करेंगे। वाटर प्रेशर साइड प्लेट और स्लाइड वॉल और नीचे का जो स्लैब है उसमें पड़ेगा। ओके, सपोर्ट ऐड करो। नोट कर सकते थ्रू सारा नोट में। अब पहले डेट लोड ऐड करो लोड एंड डेफिनेशन में। कल सब कुछ डेट लोड में ही ऐड कर रहे थे पर जो वाटर प्रेशर है वो लाइफ लोड में लेना। लाइफ लोड लेते। सो डेट लोड में क्या रहेगा, सेल्फ वेट रहेगा सिर्फ। लाइफ लोड में तुम्हारा प्लेट का सारा लोड हाइड्रोस्टैटिक जो एनालिसिस करना है। समझो वाटर प्रेशर बोल रहे हो। लाइव लोड में ऐड करना है उसका। तुम लाइव लोड के लेके भी उसको बोल सकते हो वाटर प्रेशर। समझा ऐसे करके बोल रहे हैं। तो डेट लोड में ऐड करना है किसको, सेल्फ वेट। तो -1 से ऐड होगा। क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क किसके लिए है, क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि उसमें क्या है, ऐड नहीं हो चुका। तो कैसे ऐड करूंगा हम लोग, वही बार बार एक ही चीज बोल रहे हो। सेल रोड कहाँ पे आता है, we have to define the cell root, all this in the structure, so we have to use the assign with view section. अब इसमें ऐड करो, इसको ऐड करोगे प्लेट के लिए। तो नीचे का प्लेट के लिए प्रेशर ऑन फुल प्लेट में पड़ेगा, पर साइड के प्लेट के लिए हाइड्रोस्टैटिक में पड़ेगा क्योंकि ऊपर से नीचे में वेरी करता है साइड में। तो W2 जो है और W1 जो है डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस के लिए यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, पर क्या कैसे पुट करोगे, we have to first select the plate, which side plate we have to assign the load. So how we can assign here, so how can we assign the W1 W2, suppose I have select first here, so
how to select this side, this side, this side. How? Simple. We have to use again the cut section. Suppose we have to assign this side plate. So suppose I'm going to this side, then use the cut section, select the view. Okay, this beam cursor selected, so select only this side. Go to the isometric view section, only this side plate here. Select this plate, select, done. Then we have to put according to our interpolate along global axis, means directions upside to downside. We have to assign the load and direction of pressure, and the pressure which side, which direction. Look, with the help of the local axis. So we have discussed the local axis, and we can use the global axis also. If you have to use the global axis, this side to this side, so we have to use the global Z and interpolate along global axis Y, means all the load distributed towards the upside down, and direction of this load is this direction, because water is here, so water pressure towards this direction. So we can choose direction of the pressure along with the local axis, along with the global axis also. If you choose the global axis, then this is our global axis X, so this direction, but positive X is here, so this direction will be negative, so we have to assign the pressure as a negative. So if you assign this pressure, suppose W1 is here, W1 in the lower portion load, so lower portion is higher, upper portion is minimum, so you can assign as a 0 or minimum. Suppose we calculate the pressure, the water tank pressure is 70 kN per meter square, so suppose W1 is the -70 here. Why -70? Because हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुट कर रहे हैं ग्लोबल एक्स डायरेक्शन से, सो -70, ठीक है. 0 भी रख सकते हो या तुम बोल सकते हो -5 जो कल कर रहे थे. अब ऐड करोगे तो देखना यहाँ पर जो चीज है, देखो उस साइड से यहाँ पर पड़ चुका है. अब वहाँ पर देखना डायरेक्शन लोकल एक्सिस से होगा, तो वही बात मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो जैसे करके प्लेट का असाइनमेंट हुआ है, मतलब असाइन कर रहे हो प्लेट को, तो उसमें असाइनिंग के हिसाब से उसका लोकल एक्सिस चेंज होता है. जैसे करके क्रिएशन करके लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस में उसका क्या पड़ता है, एक्स एक्सिस, उसके हिसाब से तुम जहाँ पे जा रहे हो वाई वहाँ पर क्रिएट होगा, ऊपर जा रहे हो वाई, उस हिसाब से प्लेट का एक्स वाई प्लेन वहाँ पर रहेगा. तो जेड भी उस तरफ, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. अब इसमें जेड एक्सिस का डायरेक्शन अलग है, तो देखना कि दो साइड में चलाएगा. इसमें भी इस साइड का प्रेशर यहाँ पर, ये जो प्रेशर यहाँ पर से यहाँ पर पड़ रहा है इस साइड से, ये इस साइड में आ जाएगा लोकल जेड लोगे तो, ठीक है. तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ओरिएंटेशन सब कुछ यहाँ पर है, कौन शिफ्ट प्लस टी, तो हमारा जेड का ओरिएंटेशन हम लोग देख सकते हैं कि सब का ओरिएंटेशन इस साइड में है. इस साइड में है तो हम लोग क्या करते हैं, समझो कि फिर से पुट कर रहे हैं पर डिफरेंट लेके, समझो कि इसको डिलीट कर रहे हैं वाटर प्रेशर को. यस, चला गया है. तो लोड केस डिटेल्स एट लाइफ लोड में WP ऐड कर देते हैं. ऐड, अब इसमें क्या है, समझो कि इसमें आप ऐड कर रहे हैं इसको, ऐड प्लेट लोड ऑटोस्टैटिक सिलेक्ट प्लेट. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सारा प्लेट है, तो प्लेट को सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेट का सर्कल थ्रू पहले. डन. अब इसमें देखना कि Z का जो पोर्शन है,
Z का डायरेक्शन इस तरफ। क्रिएशन, दो दो प्लेट पहले क्रिएट किए थे, तो क्रिएशन में क्या किए थे, नीचे से ऊपर में क्रिएट किए थे, तो इस डायरेक्शन में आ रहा था। सबका डायरेक्शन यहाँ पर Z वहां पर ही है। अच्छी तरीके से देखोगे तो Z डायरेक्शन वहां पर, लोकल एक्सिस, ये सब लोकल एक्सिस का डायरेक्शन दिखा रहा है Z। तो इसमें लोकल एक्सिस लोगे तो कैसे पुट करोगे, समझो कि पहले सिलेक्ट करते हैं Z का डायरेक्शन यहाँ पर, प्रेशर का डायरेक्शन जब लोकल एक्सिस से डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, प्लेट को सिलेक्ट करना है पहले। तो इसमें चला गया है सिलेक्शन, तो पहले फिर से सिलेक्ट करो, डन। डन करने के बाद क्या करना है, अब देखो ऊपर से नीचे तक पड़ेगा तो इसको y ही रहेगा, ग्लोबल एक्सिस y। और इसमें जब लोकल z सिलेक्टेड होगा तो लोकल z का एक्सिस कहाँ पे दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा है। प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, इस साइड से ही पड़ रहा है। तो अब जब दूंगा इसको लोकल x में डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर, तो वी हैव टू असाइन ऐसे 5 W2, W2 ऊपर से नीचे में पड़ रहा है माइनस ओनली 70। तो क्या होगा, अब जाके जब ऐड करूंगा उसमें लोकल z डायरेक्शन लेगा वो, क्लोज करो, वही वाला दे रहा है इस साइड से इस साइड। तो लोकल से भी कर सकते हो, ग्लोबल से भी कर सकते हो। ग्लोबल से करोगे तो ग्लोबल तो जानते हो, तो आसानी होगी। तो ग्लोबल के लिए डायरेक्शन जैसे होगा उस डायरेक्शन के लिए प्लस होगा, डिफाइंड डायरेक्शन में करना चाहते हो तो माइनस पुट करो। दूसरे साइड के लिए करते जाओ, जो जो साइड है। अब लोकल लोगे कि ग्लोबल लोगे उस डायरेक्शन के लिए, तो ग्लोबल से सुविधा होता है तो ग्लोबल एक्सिस लेना। तो मुझे बोलो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नेक्स्ट में कर रहा हूँ, और दो चीज तुम खुद ब खुद करो। समझो कि होल स्ट्रक्चर ले आ रहा हूँ, इस साइड का प्लेट के लिए असाइन करो सीपीएस साइड का। तो क्या क्या करना है, वाटर प्रेशर में ऐड करना है, ऐड करो। कहाँ पे जाना है, प्लेट लोड में, हाइड्रोस्टैटिक लोड में सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन कैसे करना है, इस प्लेट के लिए, सिर्फ इस प्लेट के लिए, इस साइड का प्लेट के लिए तो घुमा लेते हैं इस साइड का प्लेट चाहिए तो इस साइड में घुमा चुका है। व्यू फ्रॉम माइनस एक्स से देखने, तो इस साइड का प्लेट चाहिए तो कट सेक्शन कर रहे हैं विंडो। प्लेट कर्सर से कट नहीं कर सकते हो, या से कट करो या उसको। अब देखो जेड का डायरेक्शन उसमें क्या है, इस तरफ है। तो प्लस में लोगे तो चला जाएगा, लोकल एक्स में, लोकल जेड में लोगे तो प्रेशर का डायरेक्शन सब कुछ प्लस में होगा। पर जेड का लिए ग्लोबल जेड लोगे तो भी प्लस में ही होगा, क्योंकि जेड का डायरेक्शन भी इधर ही है, इस साइड भी है। तो इसके लिए सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट करो। कैसे सिलेक्ट करोगे, प्लेट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करोगे, डन कर दोगे, आ जाएगा। तो एक ही बात है, y में देते हैं W1, नीचे में 70 और इसमें 50 हो गया है। अब लोकल जेड भी इस तरफ ही है, ग्लोबल जेड भी इस तरफ ही है, जो रखोगे वही पड़ेगा। इस साइड से देखो तो ऐसा। तो इसमें थोड़ा मतलब डिफरेंस आ चुका है, तुम 5 से लो,
उसमें शायद 0 पड़ चुका है उसमें, तो ऐसे दिख रहा है। तो एनालिसिस जब होगा डिफरेंट तरीके से एनालिसिस होगा और कुछ नहीं। तुम ऐसे ही लो, जो यहाँ पर पढ़ रहे हो वैसे ही लो, 0 से भी ले सकते हो, 0 से 70, 0 से 70, 0 से 70, 0 से 70 टूवर्ड्स। दूसरों को कैसे करोगे? इस साइड से इसमें ऐड प्लेट लोड्स हाइड्रोस्टैटिक सिलेक्टेड प्लेट। अब इस साइड को सिलेक्ट करना है सिर्फ, तो व्यू से सिलेक्ट करो इस साइड से, कट सेक्शन व्यू, ओके। जो प्लेट हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन लिया गया है, लोकल एक्सिस से लूंगा तो प्लस वैल्यू देना पड़ेगा, और जब ग्लोबल एक्सिस से लूंगा तो एक्स का डायरेक्शन में प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल एक्स में पड़ रहा है इसमें, इस साइड में। तो सिलेक्ट करो इसको। अब इस साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर तुम्हें क्या करना है, प्लेट का सेट चूज करना है। सिलेक्ट हो चुका, घुमा के देखो, सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका, डन। वाई चूज कर लो पहले, जेड उस तरफ है तो उस तरफ पड़ेगा, और एक्स में चूज करना चाहते हो तो वही पे एक्स है, उस साइड में एक्स, इस साइड से इस साइड पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ जो W1 W2 का वैल्यू है प्लस में दे दो, क्योंकि एक्सिस उस तरफ ही है, डायरेक्शन भी उस तरफ। वो डायरेक्शन ज्यादा हो चुका है, मतलब वो वैल्यू ज्यादा फिट हो चुका है उसमें। अब क्या है, उस साइड का बाकी है, इस साइड का बाकी है। तो तुम पहले उसको कट करके भी रख के उसके बाद सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और लोड के अंदर भी कट कर सकते हो, एक ही बात है। समझो कि पहले कट कर लेते, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको घुमा देता हूँ इस साइड, इसमें से कट करना है तो कट। इसका ओरिएंटेशन में जेड एक्सिस इस तरफ है, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिख रहा है, लोकल जेड लेफ्ट का। तो समझो कि लोकल जेड से लूंगा या ग्लोबल जेड से लूंगा, इस तरफ क्या है, इस तरफ जेड का डायरेक्शन है, जेड का डायरेक्शन। ग्लोबल में लूंगा तो जेड में सिलेक्टेड करके तुम्हें क्या करना होगा, डायरेक्शन प्रेशर का डायरेक्शन माइनस में देना, क्योंकि प्लस जेड यहाँ पर है, माइनस जेड इस तरफ। तो समझो कि कट सेक्शन से आ चुका है, ऐड करना है, कहाँ से ऐड करूंगा, प्लेट से, हाइड्रोस्टैटिक सिलेक्शन, प्लेट कर्सर के थ्रू असेंड करो, डन। अब ऊपर से नीचे तक लग रहा है, जेड में दोगे तो लोकल जेड, और ग्लोबल जेड में दोगे तो माइनस वैल्यू पुट करना होगा इस तरफ से। समझो कि माइनस वाला नहीं पुट कर रहे, लोकल जेड यूज कर लो, क्योंकि जेड देखो इस तरफ है, उसका लोकल जेड, और यहाँ से इस तरफ पड़ रहा है ऐड। नीचे का प्लेट का डायरेक्शन देने, प्रेशर देने बाकी है, तो स्ट्रक्चर करते हैं।
नीचे का प्लेट के लिए डिफाइन करेंगे। तो नीचे का प्लेट के लिए डिफाइन करने के लिए नीचे का प्लेट सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो नीचे का प्लेट सिलेक्टेड रहना चाहिए, तो कैसे सिलेक्टेड करूंगा, उसमें कैसे करके उसमें असाइन करूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारा कुछ हो जाए तो असाइन करना है वहां पर। तो असाइन कहाँ से करूंगा, असाइन करने के लिए हमें क्या करना है, असाइन करने के लिए हमें सिर्फ उस प्लेट को चाहिए, सिर्फ। तो उस प्लेट का हम कैसे करेंगे, उस प्लेट को सिलेक्ट। तो समझो कि फिर से हम क्या करते हैं, कट सेक्शन का यूज करते हैं। अब कट सेक्शन का यूज करके सिर्फ उस वाले प्लेन को रखेंगे। तो जूम कर लेंगे, आसानी होगी कट करने के लिए। बीम कर्सर के थ्रू समझो कि इसमें से कट करेगा। अब देखो इसमें कट करूंगा तो फिर से ऊपर में आ जाएगा, तो फिर से तुम यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, तो कट करने के लिए फिर से कट करो यहाँ पर। वही सिलेक्टेड हो रहा है, देखो कट करते हैं फिर से, कट नीचे से ऊपर में जा रहा है, सिर्फ इसको हो चुका है। घुमा लो, ये पोर्शन सिलेक्टेड रहना चाहिए। ऊपर से जब प्लेट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करोगे तो बाहर का प्लेट भी सिलेक्टेड हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, प्लेट कर्सर के थ्रू जब इसको सिलेक्टेड करोगे तो ये सारा प्लेट भी सिलेक्टेड हो जाएगा। तो इसको क्या करना, फिर से कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देना है, तो ये सारा कुछ व्यू से हटा देते हैं। तो मैं क्या करने होगा, व्यू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ इसमें ही रहेगा। अब इसमें है, इसमें ही देना है, क्या देना है, इसमें जाओ ऐड करो। आप उसके प्लेट में जाने के बाद देखो प्रेशर ऑन फुल प्लेट, तो नीचे के लिए क्या पड़ रहा है, फुल प्लेट के लिए पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फुल प्लेट का जो है -70 दे रहे हैं और इसमें ग्लोबल वाई का डायरेक्शन ले लो। तो ऊपर से नीचे तक पड़ रहा है, तो -70 लेके ऐड कर देंगे, आ जाएगा। अब आ जाएगा तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, क्यों क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, उसको लिए क्या करना है, असाइन करना है। तो असाइन करो, कैसे असाइन करना है, इसके लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो जो दिख रहा है वही पर असाइन करना है, क्योंकि कट करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेके सिर्फ उसी को ही रखे थे हम लोग। तो अब क्या करना है, उसमें उसमें इसको असाइन करना है। तो असाइन कैसे करेंगे, जो इसमें है प्लेट कर सके तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अब असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट रखेंगे, असाइन कर देंगे, उसी प्लेट में असाइन हो जाएगा। तो जो दिखाया गया है करने का कोशिश करो, जहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलो। इसको करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं, जहाँ पे नहीं कर पाओगे बोलना। तो फिर से मैं इसमें डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ।
एग्जिट कैमरी। हाँ बोलो हिमालय, क्या बोल रहे हो? हिमालय कुछ बोल रहे थे? नो सर, हो गया। हुआ है मतलब यस साइड सर। का वॉल में और नीचे का वॉल में हो गया। अब देखो, दो लोड है, लाइफ लोड और डेड लोड। लोड कॉम्बिनेशन ऐड करके देखो हो रहा है कि नहीं। ऑटो लोड जनरेट में लोड कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया, इंडियन कोड सिलेक्ट करके जनरेट करो, ऐड कर देना। अब एनालिसिस करके देखो। पहले एनालिसिस कमेंट में जाऊंगा, ऑल कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कंट्रोल प्लस F दबा सकते हो या रन एनालिसिस। अब यहाँ पर एरर आएगा तो देखना पड़ेगा किस चीज के लिए एरर आ रहा है। तो फाइल से देख सकते हो, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में चले जाओ। ये सब कुछ के लिए अप्लाई करो, ओके कर दो। यहाँ पर प्लेट के लिए स्ट्रेसेस जो है, एनालिसिस जो पड़ रहा है प्रेशर के लिए, इसमें देखो प्लेट का स्ट्रक्चर, बीम को भी देख सकते हो। बीम में जो जो चीज है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन वगैरह कितना क्या पड़ रहा है, एक्सियल फोर्स मूवमेंट जो हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसमें देख सकते हो सब कुछ। और यहाँ पर क्या है, प्लेट में है, तो प्लेट के लिए कैसे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। समझो कि इस चीज को देखना चाहते हो तो भी तुम डिफरेंट डिफरेंट साइड को लिए प्लेट ये चूज कर सकते हो। कैसे, कट सेक्शन से, या से भी। ठीक है, या से भी वो अप्लाई होता है। और नहीं तो जो जो सारा कुछ प्लेट है उसमें देखने के लिए, समझो कि मैं प्रेशर देखना चाहता हूँ इस नीच नीच वाले प्लेट के लिए, तो कट करके भी देख सकते हो। नहीं तो सारा प्लेट में ऐसे करके दिखेगा। तो देखो इसमें पहले देखते हैं सारा प्लेट में कैसे दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर प्रेशर में है, तो वाटर प्रेशर में दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए करो कि मैक्स, जो इसमें एब्सोल्यूट दिया गया है मैक्स एब्सोल्यूट। अब स्ट्रेसेस टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस टाइप है, तो हम मैक्स में ले रहे हैं सब कुछ। तो इसके लिए दिखाएगा इसमें, तो यहाँ से देखने के लिए अप्लाई करना, पर दिखेगा ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिखेगा ये। ओके करो। किस साइड के लिए क्या क्या प्रेशर पड़ रहा है देखने के लिए उस साइड का प्लेट लेके भी व्यू करके भी देख सकते हो। समझो कि नीचे का प्लेट के लिए दिख नहीं पा रहा, यहाँ पर सब दिया गया कितना करके प्रेशर जनरेट हो रहा है, किस कलर के थ्रू कितना प्रेशर देना है उसमें, तो कलर के थ्रू बोल सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ नीचे का प्लेट देखना है तो क्या करोगे, व्यू में जाके तुम उसको घुमा के भी नीचे का प्लेट देख सकते हो। मतलब कंट्रोल ऊपर नीच करोगे तो घूमेगा, ये नीचे का पोर्शन के लिए दिख रहा है। तो ऐसे करके नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं कट, इसमें होल सेक्शन है, यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर से कट कर दूंगा, पिन कर सकते थे। तो ऐसे देख पाओगे। अब ऊपर से देखोगे तो ऐसे करके दिखना है। तो एक एक प्लेट के लिए एनालिसिस करना चाहते हो तो प्लेट कर्सर के थ्रू एक प्लेट को पकड़ो, डबल क्लिक करो, इसमें दिखाएगा सेंटर प्रेस कितना कितना आ रहा है, कॉर्नर स्ट्रेस कितना कितना जा रहा है उसके लिए, उस प्लेट के लिए। तो इसीलिए हम लोग मेशिंग का चीज किए थे, क्योंकि एक एक
स्पेस में एक एक जगह पे क्या क्या पड़ रहा है, कितना कितना पड़ रहा है वो दिखाएगा। होल स्ट्रक्चर में एनिमेशन देखना चाहे, डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो डिफ्लेक्शन देख सकते हो यहाँ से वाटर प्रेशर के लिए। वो तुम कम पाओगे क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अभी आपसे इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं जो एक साइड का प्रेशर है ऊपर से ज्यादा दे चुका था ऊपर में, तो इसलिए डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारे तरीके से वहां से डिफ्लेक्शन में देखोगे कि कम आ रहा है, क्योंकि वाटर के लिए इतना हिलेगा ऐसा नहीं डिफ्लेक्शन आएगा। ऊपर में 50 दे चुका था इसलिए ऐसा इस साइड में डिफ्लेक्शन को देखो, समझ पाओगे इसमें करके। एनिमेशन में जाने के बाद डिफ्लेक्शन में क्लिक करो, ओके अप्लाई करो, देख पाओगे वॉल के लिए कितना प्रेशर के लिए क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। जो इसमें दिखाया गया था उसी को करने का कोशिश करो घर में। ये तो देख देख के कर रहे थे, अब खुद ब खुद करने का कोशिश करो और एनालिसिस में जाके देखो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज कर सकते हैं एनालिसिस में। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखो। बीम के लिए देखो क्या क्या रिजल्ट वैल्यू से आके क्या क्या वैल्यू दे के मैक्सिमम मिनिमम एक्सियल फोर्स कैसे दे सकते, क्या क्या है